Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. جی حبیب بھائی آپ بولیں. اس بارے میں میرا سوال ہے کہ جو ہندو ریلیجن ہے، جو سناتنی دھرم ہے، نہیں دیکھو ایک چیز سنو حبیب. یہاں پر میں ایکس مسلم ہوں، میں اسلام کو فالو کر کے آیا ہوں. آپ مسلمان ہیں، آپ اسلام کو فالو کر رہے ہیں. ہمارا بیس آف ڈسکشن جو ہوگا وہ صرف اور صرف اسلام ہوگا. ہم یہاں پر کسی ادر ریلیجن، دھرم، پنتھ کی بات بالکل نہیں کریں گے. ہندو ریلیجن میں کیا ہے کیا نہیں ہے، کرسچن میں کیا ہے کیا نہیں ہے، جوڈائزم میں کیا ہے کیا نہیں ہے، وہ نہ آپ کا مدعا ہے میرے بھائی اور وہ نہ میرا مدعا ہے. تو پلیز نہ یہی بات تو اسی کتاب میں رہے گا، تو ہندوؤں کے کتاب میں سنیے نا. سب سے پہلے تو میرے ساتھ بات کرنے کے لیے آپ پہلے ایک ٹاپک متعین کریں، کیونکہ میرا آج کوئی فکس ٹاپک نہیں ہے. صرف آپ کو اسلام کی اوتھینٹسٹی ثابت کرنی ہے، چاہے وہ آپ قرآن کی اوتھینٹسٹی ثابت کر کے کرو، چاہے اللہ کی کو خالق کائنات ثابت کر کے کرو، چاہے نبی کو سچا اور اچھا کریکٹر ثابت کر کے کرو. تو پہلے تو آپ میرے ساتھ ڈسکشن کا ٹاپک طے کریں اور اس کے بعد میں آپ اس ٹاپک پہ ڈسکس کریں گے میرے ساتھ صرف اور صرف اسلام پہ، بنا بیساکھی لیے کسی اور مذہب کی. اب آپ بتائیں کس ٹاپک پہ آپ بات کریں گے حبیب بھائی، تاکہ میں آپ کے ساتھ ڈسکشن شروع کروں. آپ بتائیے. میں تو بتا دیا آپ کو، میری طرف سے تو اوپن ٹاپک ہے. آپ کسی بھی ٹاپک پہ جس سے آپ اسلام کو اور نبی کو اور اللہ کو سچا ثابت کر سکتے ہیں، اچھا ثابت کر سکتے ہیں، اس پہ بات کرنے کے لیے میں تیار ہوں. بتائیے کیا ٹاپک پہ بات کریں گے. نبی پر. ٹھیک ہے، نبی کے کریکٹر پہ بات کرتے ہیں نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر کیسا تھا جس کو اللہ نے ہمارے لیے بہترین اسوۃ الحسنہ، جو بہترین نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے. ٹھیک ہو گیا حبیب بھائی؟ ٹھیک ہے حبیب بھائی. ہاں جی. اوکے، تو میں ایک سوال پوچھوں آپ سے. میں کچھ بات بتا دوں یہاں پر. اچھا چلیں پہلے آپ بتا دیں پھر میں سوال پوچھوں گا. 1 منٹ لگے گا. جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے مکہ کے مشرک امانت دار اور سچے ہونے کی ثبوت دیتے رہے جب تک رسول یہ سنیں، یہ آپ کا دعویٰ ہے جس کی دلیل آپ کے ذمہ ہے. مجھے آپ یہ بات میں اس کی دلیل دوں گا، دے دیجیے. ٹھیک ہے. اس سیرت کے کتابوں میں ہے نا، ابن حشام میں ہے، البدایہ و نہایہ میں ہے. ابن ہشام کی جو کتاب ہے وہ صرف اور صرف سیرت رسول ہے، یعنی کہ اللہ کے رسول اللہ کی سیرت، ان کی زندگی. ٹھیک ہے. اس کے اندر ابن ہشام نے بھی اور ابن اشاق نے بھی جو سیرت کی کتاب لکھی ہے اس میں انہوں نے حوالے دیے ہیں، یا تو احادیث کا حوالہ دیا ہے، یا تو روایت کا حوالہ دیا ہے، یا تو قرآن کا حوالہ دیا ہے. یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں، یہ جو ابن ہشام نے لکھی ہے، اس کا حوالہ کیا ہے وہ مجھے بتا دیں. ٹھیک ہے، میں حوالہ ڈھونڈنے گیا تو بیک سٹیج ہو جاؤں گا نا. ٹھیک ہے، نہیں ڈھونڈنے نہیں جانا. چلیں آپ کے اس حوالے کو بغیر دلیل کے ہی میں 1 منٹ کے لیے مان لیتا ہوں کہ ایسا وہاں کے مشرک بولتے تھے. تو جو وہاں کے مسلمان تھے نبی کے ساتھ والے، وہ تو پھر نبی کو بہت اچھا انسان مانتے ہوں گے. ہاں جی. اچھا، تو پھر بدری صحاباؤں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بدر کے موقع پر لال دھاری دار سرخ چادر چوری کرنے کا الزام کیوں لگایا؟ وہ کچھ آدمی تھے، 1-2 آدمی تھے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آپ کے مطابق مکہ کے کافر اور قریشی رسول اللہ کو صادق الامین مانتے تھے، لیکن ان کے اپنے صحابہ جو کہ بدری ہیں، جن کو اللہ نے قرآن میں بشارت دی اور نبی نے حدیث میں بشارت دی ہے کہ یہ سارے کے سارے جنتی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہی آپ کے نبی کو چور کہہ رہے تھے؟ چور کہا نہیں، بولا ناانصافی کی ہے. چور کا الفاظ ہے نہیں، ناانصافی کا الفاظ ہے. کچھ آدمی کو زیادہ دیا، کچھ کو کم دیا، اس لیے بولا یہ انصاف کیا نہیں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں بتایا کہ نہیں، میں آپ کو بتاؤں حبیب کہ یہ انصاف والی حدیث نہیں ہے. وہ انصاف والی حدیث دوسری ہے جس میں رسول اللہ نے کچھ نئے مسلمانوں کو مال غنیمت میں سے زیادہ حصہ دے دیا تھا اور پرانے مسلمانوں کو کم دیا تھا. تو انہوں نے اس پہ اعتراض کیا تھا کہ ان کو زیادہ کیوں دیا.
اللہ نے کہا تھا کہ وہ نئے نئے ایمان میں داخل ہوئے ہیں, ان کو ترغیب دلانے کے لیے میں نے زیادہ حصہ دیا. تو یہ وہ کانٹیکس نہیں ہے حبیب, یہ دو کانٹیکس کو تم ملا رہے ہو, یہ دوسرا کانٹیکسٹ ہے. یہ تو اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غلام ہے اس نے چوری کیا ہے, خود رسول اللہ نے نہیں کیا تھا. اس کی دلیل, اس کی میں دلیل 5 منٹ میں لا دوں گا, 5 منٹ لگیں جاؤ گے مجھے. جاؤ 5 منٹ لے کر کے آؤ, جاؤ. ٹھیک. اچھا اب دلیل یا لانے تو وہ جائیں گے. سنو جا لیا. یہ جانے سے پہلے اس سے ایک بار مجھے یہ پوچھنا تھا کہ یہ کس چیز کی دلیل لے کے جا رہا ہے, اپنے منہ سے بول کے جاتا نا, تاکہ پھر کچھ اور نہ لے کے آتا. ارے ریفرنس آ گیا, ریفرنس اچھا مرتی بھائی. ہاں ابو جی, داؤد کی 2711. ابو داؤد کی 2711 کیا لکھا ہوا ہے اس میں؟ آپ اسکرین میں لائیے نا. مجھے پہلے بتا تو دیں کہ تاکہ میں جان تو لوں کہ آپ اسی کا حوالہ لائیں کسی اور چیز کا. لانے سے میں پڑھ لوں گا نا, آپ لائیے نا. پڑھ کے ہاں بتا دیں. ٹھیک ہے جی, میں لے آتا ہوں. بڑی لمبی حدیث ہے, مگر آپ اس میں اگر اپنا مدعا بتا دیتے مجھے تو زیادہ اچھا رہتا. یہ لیجیے صاحب, وہاں سب ڈیٹیلز لکھا ہوا ہے جو آپ سوال کیا ہے. نہیں آپ کیا لینے کے لیے گئے تھے, آپ صرف وہ بتائیں. میں تو بولا ہے کہ غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام نے چادر چوری کی تھی. جی, یہ آپ اس کا غنیمت حوالہ میں. لینے گئے تھے. اب آپ اس کو پڑھیں سر. انگلش آتی ہے, آتی نہیں, بنگلہ آتا ہے مجھے. بانگلہ نہیں آتا تو ہے, آپ کو اردو آتی ہے, اردو تھوڑا تھوڑا آتا ہے اتنا. تورا پڑھے, تورا جی پڑھیں, تورا. غنیمت میں سونا ہاتھ اور آپ پڑھیے نا. غنیمت میں نہ سونا ہاتھ آیا نہ چاندی, البتہ کپڑے اور مال و اسباب ملے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ود القری کی جانب چلے اور آپ کو ایک کالا غلام ہوا میں دیا گیا تھا جس کا نام مدرعم تھا. جب لوگ وادی القرعی میں پہنچے تو الکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا پالان اتارا رہا تھا اور اپنے میں. آپ بتاؤ وہ لائن کہاں لکھی ہوئی ہے کہ اس نے چرائی؟ آپ اپنا پوائنٹ ظاہر کریں. یہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ ہاں شاید. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, وہ چادر جو اس نے اس کو تیر لگ. ایک منٹ بھائی, سمیر بھائی, اس کو کی تیر لڑائی, لگ کے وہ مر گیا تھا. اس کے بعد صحابی نے بولا وہ جنتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جنتی نہیں ہے, وہ غنیمت کے مال میں سے چادر چڑایا ہے, اس لیے وہ جہنم میں ہے. یہ تو آپ کے رسول اللہ نے اس کے اوپر یہاں پر الزام لگایا ہے اس کے مرنے کے بعد. میرا یہاں پر مطالبہ کیا تھا آپ سے, کہ میں نے کہا کہ لوگوں نے یہ کہا کہ وہ سرخ دھاری دار چادر جو ہے وہ اللہ کے رسول نے لے لی ہے. تو رسول اللہ نے اس وقت جو ہے کوئی جواب نہیں دیا. قرآن میں آیت آتی ہے کہ تم لوگ جو ہے میرے نبی پر الزام لگا رہے ہو, میرا نبی خیانت کرنے والوں میں سے نہیں ہے, کیونکہ نبی خیانت دار نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, تو میرے بھائی اس آیت میں اللہ نے نہیں بتایا کہ چادر کس نے لی, صرف ان لوگوں کو ڈانٹا جو ایسا کہہ رہے تھے. اس کے بعد میں رسول اللہ نے جب یہ غلام مر گیا اور لوگوں نے اس کے متعلق کہا کہ اس کی نماز پڑھاؤ, یہ جنتی ہے, اللہ کا نبی کا غلام ہے, تب نبی نے کہا کہ نہیں یہ جنتی نہیں جہنمی ہے, کیونکہ اس نے تو وہ چادر چرائی تھی. تو یہ آپ کے رسول اللہ نے اس کے اوپر الزام لگایا ہے. یہ ثبوت نہیں ہے اس بات کا کہ وہ چادر اس نے لی ہے, کیونکہ وہ چادر اس کے مرنے کے بعد اس کے پاس سے برآمد نہیں ہوئی. البتہ وہ چادر آپ کے نبی کے مرنے کے بعد آپ کے نبی کی قبر سے برآمد ہوئی. اس میں تو وہ کچھ لکھا نہیں ہے آپ جو بتا رہے. اس حدیث میں نہیں ہے, دوسری حدیث میں ہے. میں دکھا دیتا ہوں وہ حدیث آپ کو جس میں وہ چادر جو ہے وہ آپ کے نبی کی قبر سے برآمد ہوئی. اگر میں دکھا دوں نبی نے لیا ہے نا. نہیں, اچھا اس کے بعد نبی نے لیا, وہ اس کے حدیث دے دیں مجھے کہ اس کے بعد اس غلام سے نبی نے لیا چادر کو, دے دیں حدیث. اس کو بنگلہ کیجئے نا, تھوڑا سا بنگلہ کوئی کر سکے گا تو اچھا رہتا. ارے بھائی بانگلہ میں کہاں, ٹرانسلیٹ میں ڈالتا ہوں وہاں سے پڑھ. مجھے تو بانگلہ نہیں آتی, لیکن تم اس کو اس میں ٹرانسلیٹ میں ڈال دیتا ہوں, وہاں سے تم اس کو جو ہے مجھے پڑھ لیں. جتنا معلوم ہے یہی حدیث ہے نا بھائی اس حدیث کے اندر نبی کہہ رہے ہیں کہ اس غلام نے چادر چرائی تھی, مگر میں یہ کوئی کہہ رہا بات ہوں نہیں, کہ یہ ثابت نہیں ہے میرے بھائی, یہ ثابت نہیں ہے.
वो नबी सिर्फ इल्जाम लगा रहे हैं, वो उसके पास से चादर बरामद नहीं हुई। और ये जो तुमने अभी कहा है कि नबी ने फिर बाद में उससे ले ली थी, तो मुझे इसकी हदीस दे दो कि कहाँ लिखा हुआ है कि नबी ने ले ली थी। मैं तो लाल चादर वाला खैबर के मौके पर यही तो सुना था मैं, पढ़ा हाँ, था। अच्छा, तो जब ये पढ़े थे और ये सुने थे, तो भाई तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे नबी को लोग जो है वो सादिकुल अमीन मानते थे, वो तो उसको चोर मान रहे हैं, चोर। नहीं, वो तो मैं पढ़ा नहीं, आप जो बोल रहे हैं। वो मतलब लिखा हुआ है हदीसों में, आपको पढ़ने की जरूरत है, पढ़ो जा करके, किसने मना किया आपको? कौन से ये हदीस देखो, में? ये आधा बांग्ला में हुआ है और आधा उर्दू में रह गया है। क्या क्या गुंडा बनेगा रे तू गूगल ट्रांसलेटर। हो गया, इतना टाइम थोड़ा लगता है जी। पढ़ें। presented black slave called midam and while they were जी पढ़ें भैया। 41টি এলোমেলো তীরের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল, যা তাকে হত্যা করা হয়েছিল। তাকে বলল, তাকে অভিনন্দন, সে জান্নাতি যাবে। কিন্তু थोड़ा नीचे करो, ट्रांसलेशन भी सही नहीं हुआ भाई। किंतु कहाँ किंतु कहाँ तक, किंतु 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 কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন, মোটেও না, তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, তিনি খাইবারের দিনে গনিমতের মাল থেকে যে চাদরটি নিয়েছিলেন তা তার উপর আগুন জ্বালার। वही तो बात बोल रहे हैं, वो तो चोरी किया था, नहीं, इसलिए चोरी करने के रसूलुल्लाह बाद नहीं किया, नियेचिलन मतलब लिया था। अगर यहाँ पे जो है। ट्रांसलेशन बंगाली में हुआ है नियेचिलन, तो ये नियेचिलन वर्ड कहीं पे भी चोरी नहीं समझाया जाता। नियेचिलन मतलब उन्होंने लिया था। जी बताएं आप। अरे बाबू, मुझे तो बांग्ला bd.com दिया, আমি দেখে আসছি। अरे यहाँ पर तुम्हारे नबी खुद कह रहे हैं, बाय हिम इन हुज हैंड माय सोल, उसकी कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, इज द क्लॉक दैट टुक ऑन द डे ऑफ खैबर फ्रॉम द स्पॉइल व्हिच वाज नॉट अमंग द शेड्स। जबकि बंटवारा नहीं हुआ था माले गनीमत का, उससे पहले इस गुलाम ने वो चादर ले ली थी, चोरी नहीं की थी। स्टोर नहीं जी लिखा हुआ है, टुक लिखा जी है, जी स्टोर नहीं है। जी स्टोर का मतलब चोरी, टुक का मतलब लेना। तो ये वही इन्होंने तो कहा है नबी ने कि उसने ले ली थी, मगर ये बात साबित शुदा कहाँ हुई कि उसने ले ली थी? क्योंकि उसके पास से चादर बरामद तो होनी चाहिए थी, क्योंकि वो तो मारा गया। मारने के बाद चादर अरे कहाँ गई? वही चादर उसको आग के हालत में रखा है ना, हदीस में है। कहाँ है, कहाँ है? नीचे उसका उसका नीचे उसकी तो हदीस कहाँ है मेरे भाई? इसमें तो नहीं लिखा वो चादर उसके पास से मिली है। नहीं, उस चादर को आग की ए में ढक दिया है। अरे भाई वो तो खबर जहन्नम की बात कर रहा है, वो तो एक हाइपोथेटिक बात कर रहा है नीचे जाके भाई। है। समझ में कुछ आता नहीं भाई, 1000 बार रिपीट करने का आदत है नहीं भाई। अरे भाई क्या करूं तुम्हारे भाई? नबी, अरे भाई तुम्हारे नबी कह रहे हैं कि इसने वो चादर बदर खैबर के दिन, बदर के मौके, खैबर के दिन जो है वो चादर चुराई थी इसने, तो लिहाजा वो चादर जो है जहन्नम में आग बना करके इसको उड़ाई जाएगी। ये तुम्हारे नबी उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। वो चादर उससे बरामद नहीं हो रही है, समझे हो? लेकिन वो चादर तुम्हारे नबी की कब्र से बरामद हुई है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अगर वो चादर इस गुलाम ने ली थी, तो वो चादर तुम्हारे नबी के जनाजे पर कैसे पहुंची? आप कैसे कह सकते हो वही चादर उसका है? अरे उसमें लिखा हुआ है सुर्ख धारीदार चादर। सुख खाली एक ही चादर था उस टाइम, और नहीं था नहीं, क्या? नहीं, रसूलुल्लाह के पास खदान बनी हुई थी सुर्ख चादरों की। आप ऐसा करने से कैसे होगा भाई? चल, मतलब तुम जो है, वो चादर थी या नहीं थी, वो नबी ने चुराई थी या नहीं चुराई थी, वो उसके पास से मिली नबी या ने नहीं तो मिली? कहा, रुको भाई, नबी ने कह दिया कि उसने चुराई है, आप अभी खुद बात तो सुन, नबी को बोल रहे हैं। अभी बात सुनो, मैं तुम्हारे फेवर की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ वो चादर नबी ने चुराई या नहीं चुराई, वो चादर नबी के पास मिली या नहीं मिली, वो चादर उस गुलाम ने चुराई या नहीं चुराई, इन सब का हमारे इस डिस्कशन में कोई मतलब ही नहीं बनता है। जब तुमने ये कहा कि वहां के कुरैशी और कुफार भी नबी को सादिकुल अमीन मानते थे, अगर वो सादिकुल अमीन मानते थे तो फिर वो उनकी सदाकत पर और उनकी अमानत पर इल्जाम तो नहीं लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर इस हदीस के मौके पर तुम्हारे खुद नबी के सहाबा, बदरी सहाबा खुद नबी के ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि वो चादर जो थी सुर्ख धारीदार चादर,
वो शायद नबी ने ले ली है। तो अगर वो सादिकुल अमीन मानते तुम्हारे नबी को तो वो उसके ऊपर चोरी का इल्जाम ना लगाते, जिसका जवाब कुरान देता है ये कह करके कि तुम क्या समझते हो हमारा नबी हमारा नबी जो है खयानतदार है, जबकि नबी जो होते हैं, प्रॉफिट जो होते हैं, वो अमानत में खयानत नहीं किया करते। तो इससे साबित होता है कि कुरान जवाब इसलिए दे रहा है क्योंकि लोग नबी को खयानतदार कह रहे थे। तो तुम्हारा वो क्लेम यहीं खत्म हो जाता है। वो नबी ने ली या नहीं ली डजंट मैटर, लेकिन लोग कह क्या रहे हैं, दिस इज मैटर। कहाँ लोग क्या है, आप थोड़ा वो वाला हदीस दीजिए। भाई मेरे, मुझे हदीस निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट का वक्त लगेगा, मैं निकाल के तुम्हें हदीस दे दूंगा। लेकिन मैं तुमसे फिर पूछ रहा हूं कि जब तुम्हारा कुरान खुद रेस्पोंड करके ये कह रहा है कि तुम मेरे नबी पर इल्जाम लगा रहे हो जबकि मेरा नबी ऐसा नहीं है, तो इससे ज्यादा तुम्हें क्या सबूत चाहिए इस बात का कि वो लोग तुम्हारे नबी पर इल्जाम लगा रहे हैं? क्या तुम्हारा कुरान झूठ बोल रहा है? ना नबूवत के बाद तो तमाम मक्का ने मुशरिक ने कुरान में लिखा है वो साहिर थे, जादूगर थे, ऐसा इल्जाम लगाया था। इसका अच्छा, क्या मतलब? मक्का के कुरैशियों ने, मक्का के कुफारों ने कुरान में लिखा है? नहीं नहीं नहीं, वो लोग अभी तुमने बोला जादूगर ने कहा है और शायर कहा है, ये तो मक्का के मुशरिक ने ये कहा, बात कुरान में किसने लिखी है, कुफार ने कि अल्लाह ने? अल्लाह ने। तो तुम तो कह रहे थे उसको नबूवत के बाद, नबूवत तो के हाँ, बाद, हाँ, तो फिर सादिकुल अमीन कब मानते थे वो लोग? नबूवत से पहले। साबित करो। बोला ना ये जो ये सीरत की किताब में है। हाँ, सीरत की किताब में कहाँ से हवाला लिया गया, मैं ये पूछ रहा हूँ। हिस्सा में सीरत की किताब जो है, सीरत की किताब जो है, वो नबी को नबूवत मिलने से पहले लिखी गई है कि नबी के वफात के बाद लिखी गई है, अभी बता दो। पूरा जिंदगी का वो ये लिखा गया है, कब लिखी गई, बायोडाटा। कब लिखी गई है, कब लिखी गई है? नबी की नबूवत मिलने से पहले कि नबी की नबूवत मिलने के बाद, फोत हो जाने के बाद? बाद। तो फिर वो कैसे दलील हो सकती है जो बाद में लिखी गई? बाद में तो हदीस भी लिखी गई है। तो तुमसे तभी तो पूछ रहा हूँ कि वो कैसे हो सकती है दलील? जो सच है वो दलील है। वाह 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 सिद्धार्थ भाई वाह। मतलब आप ये क्यों बोल रहे हो? क्योंकि ये सच है। सच है कैसे मान लूं? क्योंकि ये दलील है। अरे भाई वो दलील है कैसे मान लूं? क्योंकि वो सच है। क्लैप दोस्तों, क्लैप, तालियां भेजो भाई, ये लॉजिक भाई लॉजिक भाई, तालियां भेजो भाई। अच्छा, इस लॉजिक के साथ में अगर हमें मुसलमानों के साथ बात करनी है और इनके आर्गुमेंट को मानना है तो भाई फिर तो आप समझ सकते हैं कि हम किन के साथ डील कर रहे हैं और इन लोगों का जो ईमान है या इन लोगों की जो दलील है उसका मतलब क्या होता होगा। क्योंकि इनको अब तक भाई साहब अगर दलील का भी मतलब समझ में नहीं आया तो आप इनको क्या ही समझा सकते हैं। अच्छा मृत्यु भाई, आप इससे बात करें, मैं वो हदीस लेकर के आता हूँ और वो हाँ, कुरान की मैं आयत है। एक्चुअली इनसे एक टॉपिक पे बात कर रहा था। हबीब भाई एक बार अनम्यूट कर लीजिए। हबीब भाई प्लीज। हाँ, तो हबीब भाई आप कुछ देर पहले सिद्धार्थ भाई से बात कर रहे थे इस टॉपिक पे कि ये सरिया नहीं है, ये है वो है। तो एक सच्चा मुस्लिम, वो कहीं पे भी रहे, दुनिया के किसी भी देश में रहे, या फिर एक सच्चा मुसलमान जो अल्लाह और उनके नबी को मानते हैं, इस्लाम को मानते हैं, वो कैसे देश में रहना पसंद करेंगे? एक शरिया लॉ वाले देश में जहाँ पे अल्लाह का कानून चलेगा, या फिर एक नॉर्मल देश में जहाँ पे इंसानों का बनाया हुआ कानून चलेगा? बताइए तो। बेहतर तो है शरिया लॉ वाली देश बेहतर है क्या? मुसलमानों के लिए। क्या बेहतर है, क्या गलत है, ये नहीं मान बोला मैंने। मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये स्पेसिफिक है कि एक सच्चा मुसलमान कहाँ पे रहना पसंद करेगा। हाँ जी, साउंड बराबर नहीं आ रही क्या मेरी? नहीं आपका तो आ रही, मेरा तबीयत थोड़ा खराब है तो ओके सर्दी हो। ओके ओके, इट्स ओके भाई। मैं पूछ रहा हूँ कि क्या अच्छा रहेगा, क्या बुरा रहेगा, ये नहीं पूछ रहा। मैं सिंपल पूछ रहा हूँ कि एक सच्चा मुसलमान के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होगा और कौन सा बेटर होगा, मतलब उसके लिए अल्लाह का बनाया हुआ कानून में रहना है कि फिर इंसानों के बनाए हुआ कानून में रहना? अभी तो दुनिया में कोई भी तो अल्लाह का कानून नाफिज नहीं किया, ये कोई भी कर क्वेश्चन पूछा क्या? क्वेश्चन एक बार रिपीट करना हबीब भाई। 2 बार क्वेश्चन रिपीट करवा के भी अगर ये सब आपने। करोगे ना भाई नहीं नहीं, আমি तो বাংলায় सीधा बोले रिपोर्ट দিচ্ছি। करूंगा यहाँ पर। मेरे को समझना ही नहीं है, आपको समझने में दिक्कत है, मैं आपको बंगाली में क्वेश्चन करता हूँ।
मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, रिपीट कीजिए ना एक बार। আপনি বলেছেন যে একটা মুসলিম রাষ্ট্রে শরিয়া ল আছে আর একটা অন্য কান্ট্রি আছে যাই মানুষের আইন চলে, তাহলে আপনি কোনটাকে বেছে নিবেন থাকার জন্য? मैंने आपके स्पेसिफिकली पूछा कि मैंने कहा कि एक अगर सच्चा मोमिन होगा अल्लाह को मानने वाला, तो वो उसके लिए कौन सा चूज करेगा, उसके लिए कौन सा बेटर होगा? सच्चा मोमिन जहाँ भी रहेगा तो इस्लाम पर रह सकता है, उसमें कोई दिक्कत मैंने नहीं। क्वेश्चन क्या दोनों पूछा, फिर से रिपीट करना। आप क्वेश्चन प्रश्न क्या है जे कि शरिया लॉ वाली जिस जगह पर शरिया लॉ है वहाँ पर रहना चाहिए या जो इंसानों की कानून है वहाँ रहना चाहिए? कहाँ पसंद करेगा आप- रहना? हाँ, मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, तो इसका आंसर कैसे देना चाहिए आपको? मैं बोला तो है नहीं कहाँ पर शरिया लॉ चल रहा है, मुझे मालूम नहीं, दुनिया में है नहीं अभी कोई भी कंट्री। भाई सच में मतलब जड़ बुद्धि डम हो क्या, मतलब जानबूझ के परेशान करने आते हो? बताओ तो स्ट्रीम में। सच में मतलब मोमिनों का आईक्यू मतलब इतना गिर चुका है क्या कि एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया जा रहा है, वो भी समझ में नहीं आता? भाई सच में क्या? मेरे को नहीं लगता भाई, मेरे भी मुसलमान दोस्त है, पर इतना डम है मुसलमान मेरे को नहीं लगता भाई। और खास करके बांग्लादेश के बहुत सारे दोस्त है, बहुत इंटेलिजेंट लोग है उधर। हमें क्यों भाई? भारत रहे। अच्छा, इंडिया में भी अगर हो तो इंडिया में तो और भी ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं, तो भाई आईक्यू का हालत ऐसा क्यों है भाई? मतलब बात करना स्टार्ट करता हूं तो भाई बात करने का मूड चला जाता है, सच्ची बता रहा हूँ हबीब भाई। स्पेसिफिक एक क्वेश्चन किया, बहुत सिंपल और स्पेसिफिक मुस्लिम क्वेश्चन तो क्या है शरिया उसका, लॉ को पसंद करेगा ना भाई। तो ये जवाब लेने में आपको 15 मिनट 10 मिनट लग गए क्या? एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर कहाँ है कहाँ नहीं है, उस पर हम बात करेंगे। तो आप जैसे बोल रहे हो कि भाई, अच्छा मूड ही खराब हो गया बात करने का, छोड़ो। आप जब बोल रहे हो कि एक मुसलमान जो है हमेशा उसका फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा कि वो शरिया लॉ वाले देश में रहे, और मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि ऐसे हजारों के लाखों के तादाद में इंडिया में लोग हैं जो वेट कर रहे हैं गजवातुल हिंद का, जो वेट कर रहे हैं कब गजवातुल हिंद होगा, भारत में मुसलमान अटैक करके भारत को विजय करेंगे और जो है शरिया लॉ यहाँ पे कंप्लीटली एस्टेब्लिश्ड होगा। तो आप लोगों का वो जो डिस्कशन था ना सिद्धार्थ भाई के साथ कि यहाँ नहीं है यहाँ वो है, नहीं भाई, लाखों करोड़ों मुसलमान शरिया लॉ बनाने का सपना देख रहा है, जो बांग्लादेश ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है, धीरे धीरे और भी ज्यादा हो जाएगा। इंडिया में भी वो सेम चीज करने का सपना देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका कुरान और आपका हदीस में वो सब चीजें करने का हुक्म है, वो सब चीजें एस्टेब्लिश करने का हुक्म है। ये आपके रिलीजन को सबसे ज्यादा अपने आप में डेंजरस बनाता है। एक मिनट यहाँ कुछ मैं बोलूं। बोलो भाई। शरिया लॉ कौन नाफिज करेगा, हुकूमत या अवाम? जब तुम बताओ कौन भाई नाफिज, तुम बताओ बात कौन करो नाफिज। हुकूमत, सिद्धार्थ भाई, बात करो। हुकूमत। देखो, एक होता है शरियाई हुकूमत को लीड करना और शरियाई हुकूमत को इस्टेब्लिश करना, और एक होता है शरियाई हुकूमत को कायम करना। तो कायम करने का मतलब है कि अगर वो वहां मौजूद नहीं है और वहां इस्टेब्लिश नहीं है तो उसको लागू करना, कायम करना। ये तमाम मुसलमानों की सबसे पहली प्रायोरिटी और जिम्मेदारी है कि वो वहां पर इस्लामिक हुकूमत को कायम करे और उसके लिए जद्दोजहद करे। लेकिन जब वो हुकूमत कायम हो जाए तो उस हुकूमत को चलाना और उस हुकूमत को नाफिज करना, ये वहां के खलीफा की जिम्मेदारी है। ये दो अलग अलग पॉइंट है, इनको मिक्स मत करो। कुरान तुम्हारा कहता है, तुमने कहा कुरान के खिलाफ है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, कुरान के मुवाफिक है। कुरान की चैप्टर नंबर 4 की वर्स नंबर 92 से लेकर के 97 तक कॉन्टेक्स्ट बयान किया गया है, जिसकी 97 में ये कहा गया है कि एक मुसलमान का ऐसी जगह पर जिंदगी बसर करना भी कुफ्र है जहां पर इस्लामिक हुकूमत, अल्लाह का कानून नाफिज ना हो। अगर वो ऐसी जगह पर रहता है बगैर इसकी जद्दोजहद किए कि वो उस निज़ाम को बदले और इसी जद्दोजहद में अपने आप को और अपने आने वाली औलादों को, नस्लों को लगा दे, तो फिर ऐसी हालत में अगर मर जाए तो उसका ठिकाना जहन्नम है। तो हर एक मुसलमान के ऊपर उसकी जद्दोजहद करना, उसको कायम करने की फिक्र करना फर्ज है। कुरान के खिलाफ नहीं है, कुरान के मुवाफिक है। समझे हबीब? मैं इसका जवाब दूं? नहीं मेरे भाई, तुम सिर्फ इतना बताओ मुझे कि तुम्हारा मेरा जो टॉपिक था सादिकुल अमीन वाला,
उसकी दलील तुमने मुझे अब तक नहीं दी। तुमने कहा इब्ने हिशाम में लिखा हुआ है। इब्ने हिशाम में किस सफ़ा पर, किस वॉल्यूम में, कहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है वो बता दो, और वहाँ पर जहाँ ये चीज़ लिखी हुई है वहाँ पर इब्ने हिशाम ने कौन सी हदीस, कौन सी रिवायत और कौन सी तारीख का हवाला दिया है? पहला तो माने सीरत की पहली किताब तो इब्ने हिशाम है, वो किसके गधे, हवाला देगा सीरत मैं? की पहली किताब इब्ने इशाक है, हिशाम नहीं है। हाँ हिशाम इब्ने इशाक के 150 साल के बाद पैदा हुआ है। नहीं, हिशाम है ना। इशाक है भाई पहली किताब, इब्ने इशाक, हिशाम नहीं। तो देखना पड़ेगा, मैं जानता हूँ तो इब्ने हिशाम है, जाओ शायद देख, इसाक जाओ देख, जाओ देख करके आओ। बिना पढ़े लिखे, बिना देखे यार मत आया करो यार, आधी अधूरी इल्म लेकर।